Very good morning to all of you, my dear students. You are welcome after summer vacation. So, previous video we had discussed what the condition of France was there during the 1789 and what were the main causes of French Revolution. Today our topic is outbreak of revolution in France. Actually France में इस रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई कैसे? As you know, people were facing subsistence crisis at that time where they were struggling for their livelihood. Their payments were very low, their wages were very low, but the population was increasing very fast and the weather was also very harsh. So people had to stand in a long queue for a loaf of bread. So there the king called the meeting of States General, where 600 participants or 600 representatives of the third estate people were also present there, but they were made to stand behind. This was an insult of third estate representatives. There third estate people or leaders who were actually the intellectuals, professionals, lawyers, businessmen, they were there and they demanded for the universal adult franchise, means everyone should have the right to vote. But this demand was denied by Louis XVI. So the people of third estate, means leaders of the third estate, they walked out from the States General meeting and they made in a tennis court and they formed the National Assembly. वहाँ पर वो National Assembly का formation किए. So all these things were happening in the town, but at the same time the revolution started by the peasants in the villages also. यानी वहाँ पर क्या था, गांव में एक अफवाह उड़ी कि जो ज़मींदार हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके जो गुंडे हैं या उनके जो लठायत हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आ रहे हैं फसलों को बर्बाद करने के लिए. किसान इससे काफ़ी उग्र हो गए. उन्होंने चैट्यूक्स यानी जो बंगला हुआ करता था उस समय जिसमें उनके ज़मींदार रहा करते थे, उसमें जो कागज़ वगैरह थे उन सबको जलाना शुरू कर दिया. दे स्टार्टेड बर्निंग ऑल दोज पेपर्स. And in the town at the same time annoyed people attacked on Bastille prison. It was the matter of hatred among the people. All the revolutionaries were kept as a prisoner in the Bastille fort. This was the symbol of power of the king. So people wanted to demolish this. They killed the commander of Bastille fort and all those 7 prisoners who were there were released by the revolutionaries. So these were some things that happened during the outbreak of the revolution in France. फ्रांस में ये आंदोलन शुरू होने के बाद ये कुछ ऐसी घटनाएं थी जो शहरों और गांवों में होनी शुरू हो गई और एक तरह से ये आंदोलन क्या होते चला गया, फैलता चला गया. ओके, सो व्हाट द नेशनल असेंबली डिड आफ्टर दैट. नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड फ्रांस एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. नेशनल असेंबली जो थी उसने फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की घोषणा कर दी. सो व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज, मोनार्क विल बी देयर बट इट्स पावर्स विल बी लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. राजा तो होगा लेकिन उसकी शक्तियां जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हाथों में होंगी, राजा मनमानी नहीं कर सकता है. सो द नेशनल असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791. नेशनल असेंबली ने 1791 यानी 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया विथ लिमिटेड मोनार्की, जिसमें राजा के पावर्स को क्या किया गया, कम कर दिया गया. अब राजा वो नहीं कर सकता है जो वो चाहेगा, मनमानी नहीं कर सकता है. अकॉर्डिंग टू द नेशनल असेंबली एंड किंग वुड वर्क टुगेदर टू गवर्न. यानी नेशनल असेंबली और किंग एक साथ मिलकर फ्रांस पर शासन करेंगे. यानी राजा मनमानी नहीं करेगा, राजा के हाथों में सभी पावर्स नहीं होंगे. The people got divided into active and passive. This is the very most important topic. Active citizens and passive citizens. See, the women, children and youth below 25 years who had no right to vote were termed as passive citizens. वैसे citizens जिनको वोट देने का अधिकार नहीं है, जो 25 साल से कम के हैं, उनको क्या कहा गया, पैसिव सिटीजन्स कहा गया. और एक्टिव सिटीजन्स वैसे सिटीजन्स थे जिनको वोट देने का अधिकार था. एक्चुअली दे वर 4 मिलियन. वो कितने थे, 4 मिलियन के आसपास थे. दिस 4 मिलियन पीपल वोट फॉर द 50,000 इलेक्टर्स. ये वोट करते थे
कितने को चुनने के लिए? 50,000 इलेक्टर्स को चुनने के लिए, यानी खुद में वो 4 मिलियन में से 50,000 को चुनते थे। एंड दीज 50,000 इलेक्टर्स वोट फॉर द नेशनल असेंबली वेयर 745 मेंबर्स वर देयर, यानी उसमें 745 मेंबर्स हुआ करते थे। एंड यही नेशनल असेंबली फॉर्म करती थी किसको? लेजिस्लेटिव को। दीज लेजिस्लेटिव कंट्रोल द पावर्स ऑफ द किंग ऑल्सो एंड कंट्रोल्स द मिनिस्टर्स ऑल्सो, ये सभी के पावर को कंट्रोल करती थी। एंड द किंग हैड गॉट द पावर ऑफ वीटो, यानी एक्चुअली राजा के मोहर के बिना कोई भी लॉ पास नहीं हो सकता था। एंड दिस 4 मिलियन एक्टिव पीपल डायरेक्टली इलेक्ट फॉर द जुडिशियरी। सो दिस वाज द सिस्टम ऑफ नेशनल असेंबली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। Constitutional monarchy was formed there. Okay students, and you have also understood who were the active citizens and who were the passive citizens. So actually the newly elected assembly was called convention. जो नया चुना गया, जो अभी अभी असेंबली बनी थी, उसको कन्वेंशन कहा गया। इवन आफ्टर साइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और राजा के साइन करने के बाद भी, क्योंकि राजा ने इसको मान लिया था सारे रूल रेगुलेशन को, लेकिन राजा तो राजा होता है भाई, उसको बड़ा ही दिक्कत था कि ये थर्ड स्टेट के पीपल जो हैं कभी मेरे अंडर में थे, आज मेरे ऊपर ही क्या कर रहे हैं, अपने पावर को दिखा रहे हैं। तो अंदर ही अंदर क्या था, उसके मन में घुटन थी। सो लुइस 16 was entered in the secret negotiation with king of Prussia। जो लुइस 16 था ना, वो प्रसिया का जो राजा था ना, उसके साथ साठ गांठ कर लिया, यानी नेगोशिएशन कर लिया, गठबंधन बना लिया। ओके, एंड डिक्लेरेशन ऑफ वार ऑफ नेशनल असेंबली अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। तभी नेशनल असेंबली को ये सारी बातें पता चल गई कि हमारा जो राजा है वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसके चलते उनका देश खतरे में है। तो उन्होंने प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ाई को छेड़ दिया, यानी उन्होंने लड़ाई करना शुरू कर दिया। सो एज द पॉलिटिकल राइट्स ओनली गिवन टू द रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, पॉपुलेशन वांटेड टू कंटिन्यू द रिवॉल्यूशन। यानी जो जितने भी पॉलिटिकल राइट्स थे वो केवल धनी लोगों को दिए जाते थे, इसलिए लोग चाहते थे कि ये रिवॉल्यूशन चलते रहना चाहिए। सो रिपब्लिक क्या है? ए रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, यानी रिपब्लिक का अर्थ होता है जहाँ पर लोग खुद अपना जो शासक है वो चुनते हैं, अपने लीडर्स को चुनते हैं, ठीक है ना। सो पॉलिटिकल क्लब्स वर फॉर्म टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान्स। अब चूंकि नेशनल असेंबली के द्वारा ये सारी चीज़ें हो गई थी, तो हुआ क्या कि वहाँ पर पॉलिटिकल क्लब्स बनने शुरू हो गए, और पॉलिटिकल क्लब्स के द्वारा क्या होता था, राजा की नीतियों की चर्चा की जाती थी। सो स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूलेरीज हेल्ड द किंग हिमसेल्फ होस्टेज। और वहाँ पर राजा को, मतलब कि ये जब लड़ाई शुरू हुई तो वहाँ पर राजा को खुद ही बंधक बना करके रखा गया काफ़ी समय तक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो आफ्टर नेशनल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद हुई थी, ठीक है। सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, जैकोबिन्स एंड द न्यू गवर्नमेंट, यानी किसकी सरकार बनती है? जैकोबिन की सरकार बनती है। जैकोबिन्स एक क्लब था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल क्लब था। So political clubs became an important rallying point of people who wish to discuss government policies, plans and their forms of action, जैसे कि जैकोबिन क्लब था। यानी जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि पॉलिटिकल क्लब्स जो थे वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्थाएं बन गई थी जो राजा की नीतियों और शासन के बारे में क्या करती थी, चर्चा करती थी, जैसे कि जैकोबिन क्लब था। सो इट वॉज फॉर्म्ड इन वर्साइल ड्यूरिंग द स्टेटस जनरल ऑफ 1789। 1789 के स्टेटस जनरल के समय में ही इसका क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। मैक्समिलियन एंड एबे वर द इम्पोर्टेंट लीडर्स, और इसके जो दो मुख्य नेता थे, मैक्समिलियन थे और एबे थे, है ना। सो द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब्स बिलोंग टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन, यानी लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन का अर्थ हुआ जैसे कि जो जूता बनाने वाले मोची हैं, बढ़ई है, किसान हैं, मतलब जो लेस प्रॉस्पेरस थे वो इसमें शामिल हो गए थे। सो मेंबर्स ऑफ दिस क्लब डिसाइडेड टू वियर लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर। इन लोगों ने डिसाइड किया कि वो अपनी एक पहचान बनाने के लिए कि हम इस क्लब के मेंबर हैं, वो लॉन्ग स्ट्रिप्ड मतलब कि ट्राउजर को पहनना शुरू कर दिया। वर्न बाय डॉक वर्कर्स, जो समुद्र में जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो जो पहना करते हैं उसी तरह का ड्रेस इन लोगों ने क्या किया, अपनी पहचान के लिए बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, और पहनना शुरू कर दिया।
सो ये क्यों ऐसा करना चाहते थे, क्यों अपना अलग एक यूनिफॉर्म बनाना चाहते थे, उसको आप देखोगे। दिस वाज अ वे टू सेट देमसेल्व्स अवे फ्रॉम फैशनेबल सोसाइटी। वो चाहते थे कि फैशनेबल सोसाइटी से वो अपने आप को अलग रखे, खासकर नोबल से हु वियर नी ब्रीचेज, जो नी ब्रीचेज यानी घुटनों तक उनका जो ब्रीचेज था वो पहना करते थे, तो वो इनसे वो बिल्कुल ही अलग दिखना चाहते थे। The Jacobins came to known as sans cloutos. So these without the knee breeches, यानी इनको sans cloutos कहा गया। कुलोटीज, कुलोटीज का अर्थ होता है विदाउट नी ब्रीचेज, क्योंकि नी ब्रीचेज कौन पहना करते थे, फैशनेबल सोसाइटी, नोबल्स खासकर। sans कुलोटीज वांटेड टू रिमूव एरिस्टोक्रेसी एंड मोनार्की। वे चाहते थे कि पूरी तरह से देश से एरिस्टोक्रेसी और राजशाही क्या हो जाए, समाप्त हो जानी चाहिए, यानी वो विद्रोही स्वभाव के थे। सैंस कुलोटीज स्टार्टेड वेयरिंग रेड कैप सिंबलाइज लिबर्टी, यानी उन लोगों ने लाल टोपी पहनना शुरू कर दिया जो आज़ादी का प्रतीक था। ओमेन वेयर नॉट अलाउड टू डू सो, लेकिन औरतों को ऐसा करना अलाउड नहीं था। सो इन द समर ऑफ 1792 जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंस्टीट्यूशन इंसरेक्शन विद द हेल्प ऑफ पेरिजियंस। ध्यान देंगे, यानी समर 92 में जैकोबिन्स ने प्लान किया राजा को, मतलब कि एक तरह से क्या होना, खदेड़ने का या उस पर अधिकार करने का। तो इस तरह से ये इनके क्या थे, नीतियाँ थी जो जैकोबिन्स की थी। अगले वीडियो में हम लोग और आगे के टॉपिक्स को देखेंगे, तब तक आप इसको बार बार पढ़ो और समझो, क्योंकि ये वीडियो खास करके आप ही लोगों के लिए इसलिए बनाई गई है ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू।